हम एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में जानेंगे जो एक बहुत ही पढ़े लिखे सुलझे इंसान थे। देश की आज़ादी में कई बार जेल भी गए, सच्चे गांधीयन रहे हैं और एक ईमानदारी की एक मिसाल रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर रहकर देश की सेवा की है और देश के 2 बार वो प्रधानमंत्री भी रहे हैं। पॉलिटिकल रिटायरमेंट के बाद उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन लेने सही नहीं समझा और उसको मना कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि उनकी इकोनॉमिक हालत ऐसी थी कि वो जहाँ पर रह रहे थे उनका हाउस रेंट भी वो पे नहीं कर पा रहे थे। और एक बार हुआ ये था कि जो मकान मालिक था उनको घर से बाहर कर दिया था। तो आइए हम लोग जानते हैं ये महान शख्सियत कौन थे। लाल नंदा। So let us know about him. Born on July 4, 1898 in Sialkot, Punjab, now in Pakistan. Sri Gulzari Lal Nanda was educated at Lahore, Agra and Allahabad. He worked as a research scholar on labor problems at the University of Allahabad from 1920 to 1921 and became professor of economics at the National College, Bombay in 1921. He joined the non-cooperation movement the same year. As in 1921, Gandhiji started the non-cooperation movement against the British rule. He was imprisoned for Satyagraha in 1932 and again from 1940 to 44. That means Gandhiji started civil disobedience movement in 1932 and Gulzari Lal Nanda was participated in that and he went to jail. Again 1940 to 44 Gandhiji started Quit India movement for India's freedom और इसमें भी गुलजारी लाल नंदा जी पार्टिसिपेट किए थे एक्टिवली और वो जेल भी गए थे। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि गुलजारी लाल नंदा एक बहुत ही पढ़े लिखे समझदार इंसान थे, सच्चे देशभक्त थे, सच्चे गांधीयन थे, जो गांधी जी के जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और वो जेल भी गए थे। Now see, after independence, Gulzari Nanda hold many important positions. For example, Deputy Chairman of the Planning Commission. PM Nehru was the chairman. So Planning Commission was the topmost body to decide the planning and development of the country. He was Minister of Planning, Irrigation and Power in 1952. These important portfolios were very crucial for the development of India. He was Union Minister for Labor and Employment in 1962 to 1963 as he was also a scholar in that aspect and he did research on that, and he was also Professor of Economics during his early days. He was Minister for Home Affairs in 1963 to 1966. Ministry of Home Affairs is very important post after Prime Ministership. तो यहाँ से हम लोग को साफ दिख रहा है कि उनका व्यक्तित्व कितना महान रहा है, कि उनको आज़ादी के बाद महत्वपूर्ण पदों पर देश की सेवा करने के लिए रखा गया था और उन्होंने बहुत जी जान से देश की सेवा की है। Gulzari Lal Nanda, Prime Minister of India. Nanda was the interim Prime Minister of India twice. The first time after the death of first Prime Minister Jawaharlal Nehru in 1964 and the second time after the death of second Prime Minister Lal Bahadur Shastri in 1966. Both terms came at sensitive times because of the potential danger to the country following Nehru's death. Soon after a war with China in 1962 and Shastri's death after a war with Pakistan in 1965. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि श्री गुलजारी लाल नंदा जी देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं 2 बार, और वो भी एक क्रिटिकल सिचुएशन में जब कंट्री बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था इंटीग्रेशंस को लेकर के, और जो हॉस्टाइल जो नेबर से पाकिस्तान और चाइना उनको भी फेस कर रहा था। तो एक
एक महान व्यक्तित्व रहा है गुलजारी लाल नंदा, और एक वो ईमानदारी की एक मिसाल रहे हैं, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति रहे हैं, इससे साफ पता चलता है। Gulzari Lal Nanda, pauper life, no money to pay for his house rent. He lived a very simple, very ordinary, anonymous life with no personal property. He did not accept his Indian 500 rupees pension from government. He was once thrown out of his rented house by his landlord because he failed to pay his rent. This event was recorded by journalists and eventually published by a newspaper, after which he had to be forced to accept the pension by his eminent former colleagues and friends, from which he ultimately paid his rent. He was awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian award, in 1997. He died on 15th January 1998. तो आप एक महान व्यक्तित्व का लाइफ आप देख सकते हैं जिन्होंने देश की सेवा की है। पॉलिटिकल रिटायरमेंट के बाद उनके एक तो उन्होंने गवर्नमेंट का पेंशन लेना मना कर दिया था क्योंकि उनको वो सही नहीं लगा। देश में इतनी गरीबी है और उनको लगा कि वो पेंशन के हकदार नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं आज के टाइम में पॉलिटिशियंस ऐसे हो सकते हैं। और बहुत ही एक पॉलिटिकल रिटायरमेंट के बाद बहुत ही एक सिंपल लाइफ रही है, और पहले भी वो सिंपल एक मतलब ट्रू गांधीयन थे, एक सिंपल लाइफ जीते थे। वेरी ऑर्डिनरी एंड एनोनिमस लाइफ, मतलब आप सोच सकते हैं कि वो रेंट पे रह रहे हैं और जो हाउस ऑनर जो है वो भी नहीं जान रहा है उनको कि हाँ ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर से एकदम दूर एक बेनाम की लाइफ जीना, एक ऑर्डिनरी एक सिंपल लाइफ जीना। तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी थी कि वो पे भी नहीं कर पा रहे थे हाउस रेंट, और हाउस ऑनर ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। और तब किसी जर्नलिस्ट को ये पता चला कि इस तरह का इंसिडेंट्स हुआ है, क्योंकि एक बुजुर्ग मतलब ओल्ड मैन को हाउस ऑनर ने घर से निकाला। तो एक तरीके से न्यूज़पेपर के लिए ये एक न्यूज़ बन सकता था। तो जब ये पब्लिश हुआ तो पता चला कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो उस समय प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने कलीग्स को भेजा, और फिर हुआ है कि उनको बहुत रिक्वेस्ट किया गया कि आप गवर्नमेंट पेंशन लीजिए, और उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट किया और उससे उन्होंने हाउस रेंट भी पे किया। तो आप और उनको भारत रत्न, भारत का जो मतलब सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है, सम्मान होता है, उनको मिला। तो आप सोच सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर इतना सिंपल लाइफ एक जी सकता है। आज के टाइम में तो हम लोग पॉलिटिशियंस जो फैमिली के साथ बाहर वैकेशन मनाने जाते हैं, अगर कुछ बीमारियां होती है तो बाहर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, इंपोर्टेड गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि हम लोग की पॉलिटिकल सिचुएशन जो कंट्री की किधर जा रही है, और पॉलिटिकल सिनेरियो जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, जो पॉलिटिशियंस थे वो किस व्यक्तित्व के थे, कितने ईमानदार थे। और आज हम लोग कंपेयर कर सकते हैं पॉलिटिशियंस का जो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी है, कोई कंपेयर ही नहीं है।